I'd like to say sorry, our apologies for the not starting on time. माजूरी चाहते हैं कि मैं देरी से शुरू कर रहे हैं. So still we are glad to have the presence of all the parents. I mean all the parents of all 10th standard students. So this is going to be the great event, one of the remarkable milestone after what we started the school in 2013 and 14. तो हमारे बानी हाजी मिर्जा असलम पाशा सर और हमारे सदर साहब हाजी अब्दुल रहमान सर के मेहनत 10 साल के बाद एक इतना बड़ा रिवार्ड मिल रहा है कि हमारे फर्स्ट रेगुलर बैच अब एसएलसी तक पहुंचे. उस जमाने में बहुत सारे क्रिटिसिज्म, बहुत सारे नेगेटिव सुन रहे थे. मदरसे में स्कूल शुरू किए, क्या जरूरत है. So by overcoming all those, we have reached here the long way. So the first batch has completed 10 years and they are about to write their public exams. So this is really a great achievement. First of all, let's give a big round of applause to our founders and the management for taking the right decision at the right time. Today, if you see like all the masjids and madrasa, they want to start the school. But this was understood by our management 10 years ago. Alhamdulillah. So I also expect that this batch will be our pilot batch for the PUC, and they will also be, when they complete their PUC, inshallah we will also have the first batch of graduation, first batch of degree. I mean inshallah even post graduation. We can also even start the university inshallah. Say inshallah. Inshallah. Okay. So that's great. So it has been the hard work of our 9th standard students. Like there is always the successor and there is always end for every good thing. So it is not actually the end. I just consider it as a part of journey. Definitely I am sure 100% of these students will be with us in Ali PU College. It is just their end in Ali Public School. But definitely they will be with us in future. So it is hard work of our 9th standard boys and 9th standard girls. Let's give a big round of applause to these 9th standard students. MashaAllah, they are working really hard. Like Mariam, yesterday night at 10 o'clock when I went to stationery shop on the way to my house, I saw these 10th standard girls. They were there arranging the gifts and all. So, MashaAllah, great work. So, this program's anchoring and all the management of this program, we would like to give it to the 9th standard students. So I would like to welcome the anchors from 9th standard, whoever wants to take the program forward, and it is your day, the way you want to take it for your seniors. Okay. Okay, so before handing over to them, we will have this pre-acts like Siraj, Nath, and we would also want to hear from the management. So first let me start with the Siraj. Yes. Happy journey, your new ownership that sails you in a new voyage of opportunities and career establishment. Good luck on your new journey. May success always be with you. And in the meanwhile, I would like to invite all the dignitaries on dais. First of all, our founders and president, Haji Mirza Aslam Pasha sir and Haji Abdul Rahman sir, please come on the stage. We are also glad to have the presence of Ahmad sir and JK sir with us. They are the they are the pillars of
the pre-university. I'll also invite Principal Ma'am to come on the stage here. Okay, let's continue. Thank you for that melodious snap. I would like to call Junaid to deliver speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable management, respected principal, beloved teachers, and my dear friends. Good afternoon. I am Junaid from 9th Standard. I would like to express my thoughts on the occasion of the farewell ceremony of our school class 10 students. Set your goal high and always dream big, because you are only as big as the dream you dare to live. To bid goodbye is always painful, but when it is for the betterment, for those whom we are bidding goodbye in their farewell is full of hope and best wishes. Today we have gathered here for this farewell ceremony, and our 10th class will take their important exam for future career and leave this school. We wish them all the best for their 10th class board exam and for their future career. But we are sad because they will not be in school. The only thing in our heads is to accept it gracefully and move ahead. We have very memories of our 10th class students, and we will keep them forever. Our principal and our teachers have always encouraged the cooperation among different classes. We are thankful for it. As a student of 9th standard, I can't talk too much, but the best wishes of all of us always for the students, and we are sure that you will achieve grand success, not only in your 10th standard exam, but also in your lives. We wish you all the best and promise that we will never forget you. Thanks a lot for giving me this opportunity to express my thought on the occasion of the farewell ceremony of 10th students. Jazakallah. Thank you, brother. Let me call Afia Khanam Farnat. शुरू करो अलविदा अलविदा
दोस्तों अलविदा। छा रही है घटा आ रही है सदा, दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। एक मुसरत का आलम है दिल में मगर, रो रही है मुसलसल मेरी चश्मे तर। एक मुसरत का आलम है दिल में मगर, रो रही है मुसलसल मेरी चश्मे तर। वक्त रुक सच्चो था सर पे वो आ गया, दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। वक्त रुक सच हुआ कह रही है फिजा, दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। अपना मस्कन वतन और चमन था यही, इस मदरसे ने दी है नई जिंदगी। अपना मस्कन वतन और चमन था यही, इस मदरसे ने दी है नई जिंदगी। इल्म की नूर से दिल हुआ बुझिया, दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। वक्त रुक सच हुआ कह रही है फिजा, दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। अपने उस्ताद आलिम है आमिल है सब, इल्म तक़वे में ये सारे कामिल है सब। अपने उस्ताद आलिम है आमिल है सब, इल्म तक़वे में ये सारे कामिल है सब। जा रहे हैं सभी लेके उनकी दुआ, दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। वक्त रुक सच हुआ कह रही है फिजा, दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। इस मदरसे से हमको है इज्जत मिली, अवदियों बन की है ये निस्बत है मिली। इस मदरसे से हमको है इज्जत मिली, अवदियों बन की है ये निस्बत है मिली। सर पे दियो बन का है ये है सहरा सदा, दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। वक्त रुक सच हुआ कह रही है फिजा, दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। छा रही है घटा आ रही है सदा, दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। जज़ाकल्लाह। Thank you, Afia, for the melodious work. I would like to call our founder and General Secretary Haji Mirza Aslam Pasha sir to deliver a speech. हो गया ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी अव्वली कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी औसती कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी आखिरी कलामिना। मोहतरम अजीज पेरेंट्स, स्टेज पे बैठे हुए
साथियों, अजीज तलबा इकराम, बड़ी मुसर्रत का दिन है। हमारे स्कूल शुरू किए हुए 10 साल हो गए। अभी जो 10th स्टैंडर्ड में बच्चे ही वो फर्स्ट स्टैंडर्ड को आए थे 2014 में, ये 2024 है। 10 साल का सफर करते हुए यहाँ तक पहुंचे। माशाअल्लाह हमारे साथियों की, टीचर्स की और पेरेंट्स की जद्दोजहद, मेहनत, उनकी लगन, उनका इखलास, लिल्लाहियत, ये सब के बिना पर यहाँ तक तरक्की करते हुए यहाँ तक पहुँचे, मिन जानिब अल्लाह की तरफ से। दुआओं की बरकत है मदरसे की, उसका असर अल्हम्दुलिल्लाह, उन दुआओं का बरकत का असर ऐसा है कि वक्त वक्त पर मददें मिलती गई। हमें कहाँ, ये इदारा कहाँ, मैं समझता हूँ इन्हीं दुआओं की बरकत है जो मदरसे के तलबा, पढ़ने वाले बच्चे, उनकी दुआ है और कुरान की बरकत है। हमारे इस इदारे के अंदर हर कमरे के अंदर कुरान की तिलावत जरूर होती है। उसकी बरकतें हैं जो यहाँ तक नतीजे तक पहुँचे। और भी उम्मीदें हैं, इंशाअल्लाह जरूर ना जरूर इंशाअल्लाह हमारा मकसद पूरा होगा। जो हमारे इदारे वाले, जो हमारे टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं और इस इदारे को मदद और कुम्मत करने वाले, जो हमारे को उम्मीदें मानी हैं, इंशाअल्लाह वो उम्मीदें पूरे होकर रहेंगे अल्लाह की मदद के साथ। आज मैं ये भी समझता हूँ कि जो अली पीओ कॉलेज जो हुआ है, ये भी अल्लाह की मदद है और दुआओं का असर है। और बहुत बड़ी गनीमत है जो हमारे टीचर्स मिल गए, प्रिंसिपल मिल गए। इससे बड़ी, बहुत बड़ी गनीमत यह है कि हमारे कदम डगमगा रहे थे और सोच और परेशानी बढ़ गई थी। अल्लाह ने अपने फजल से ज़मरुद साहब हैं, इफ्तिखार साहब हैं, इनकी टीम है जो हमारे साथ देने के लिए तैयार हो गए। ये सबसे बड़ी अल्लाह की मदद है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे गुमान में भी बात नहीं थी, ज़हीन में भी ये बात नहीं थी, इतनी बड़ी अल्लाह की मदद मिलेगी। लेकिन ये पीयू कॉलेज को संभालने के लिए ये दोनों हाँ में हाँ मिलाए, हमारा साथ देने के लिए तैयार हुए। बल्कि हम सब मुबारकबाद हैं, इनकी आमद पर हमें इंतहाई बड़ी खुशी है, बड़ी मुसर्रत है, इत्मीनान है। इंशाअल्लाह जो हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे उस दर्जे तक जाए, नीट का एग्ज़ाम, CAT का एग्ज़ाम, जो हमारे बच्चे वहाँ तक जाने की चांस और स्टडी का जरिया बन गए। स्कूल चलाने के लिए टीचर्स, फैकल्टीज की बहुत ज़रूरत है। इसके बिना पे बच्चे आगे बढ़ना मुश्किल है। वो जरिया मिल गया जिसके बिना पे इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। हमारे मैम कह रहे थे कि 90% ये वो जो जितने भी बच्चे लेंगे उनको फ्री ट्यूशन फीस होगी। तो मैं और हमारे सदर साहब मिलकर
बात कर रहे थे तो मैम बोले, हमारे प्रिंसिपल मैम, सर हमारे तो बच्चे पूरे के पूरे 90% ले लेंगे, कैसा करना? इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे मैम। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि बच्चे वहाँ तक पहुँचे ही, और यहाँ से पहुँचने के बाद इधर उधर की कॉलेज में स्कूल में चले जाएंगे, तो वहाँ तक नीट के एग्ज़ाम की तरक्की के लिए जो मेहनतें ही शायद ही कर पाएंगे दूसरे कॉलेज वाले, लेकिन मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ, अल्लाह के ऊपर भरोसा है कि हमारी जो फैकल्टी है वहाँ तक ले जाएंगे। मैंने अभी रिसेंट में मैं और हमारे सदर साहब हमारे जमरूद साहब की ट्यूशन क्लास में गए थे। वह एक बच्ची तकरीबन 9:30-10 घंटे तक भी बैठी हुई थी, तो ये कह रहे थे कि जब तक तुझे याद नहीं होगा हमें नहीं छोड़ेंगे। उनके पेरेंट्स को वहीं बुला लिया, वहाँ बिठाए, फिर याद होने के बाद जो कुछ है वो बच्ची को पेरेंट्स के साथ जाने दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे इंशाअल्लाह पीओ में ज्वाइन होंगे, ये काम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अब 2 साल के अंदर जो मेहनत है, बच्चों की मेहनत है, हमारे फैकल्टी की जो मेहनत है, अगर कर जाएंगे तो मैं हर जगह बोलते आ रहा हूँ ये कि हमारे बच्चों को भी बोला, बाहर के स्कूलों में जहाँ पे अभी जा रहे हैं, हमें मोटिवेट करने के लिए, उनके बात करने के लिए जा रहे हैं कि पीयू हमारी कॉलेज है, तो उनको कहता हूँ कि भाई 2 साल तुम ऐसी मेहनत करो कि 1.5 करोड़ रुपए आराम से कमा सकते हैं। अब पूछने वाले पूछे बच्चे कि हजरत हम स्कूल में पढ़ते हैं, मदरसे पीयू में पढ़ रहे हैं, तो 1.5 करोड़ कैसा कमा सकते हैं? आसान सी बात है, इस 2 साल के अंदर अगर मेहनत करेंगे तो मेडिकल सीट लेने के लिए 1.35 करोड़ रुपए हमारे सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट की सीट मिलती है। अगर मेहनत करके नीट के एग्जाम के अंदर वही चीजें वहाँ जो गवर्नमेंट का जो कोटा है 550 या 500 या 550 वो क्रॉस कर जाएंगे तो 1.5 करोड़ रुपए कमाइए सर। वो 1.5 करोड़ कमाने के वास्ते फैकल्टी वैसी होना चाहिए। तो माशाअल्लाह मैं और ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। इंशाअल्लाह बच्चे मेहनत करेंगे, बच्चे साथ देंगे तो इंशाअल्लाह वो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो इस बिना पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को दूसरे जहाँ पे हमें सर्वे कर रहे हैं जा रहे हैं, इंशाअल्लाह 150 से ज़्यादा बच्चे हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि पीओ कॉलेज में आएंगे। पिछले साल ऐसा हो गया था कि हमें परमिशन मिलते लेट हो गया। 27 जुलाई को हमें परमिशन मिला, उसमें बच्चे को हमें तश्कील करके ला नहीं पाए। हमें और सदर साहब सोच रहे थे, हमारी कमेटी वाले, हमारे प्रिंसिपल सोच रहे थे कि इस साल करने का नहीं, आइंदा साल करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट का कानून ऐसा था कि अगर उस साल नहीं करेंगे तो लैप्स हो जाएगा, फिर आइंदा साल रिन्यूअल कराने के लिए वही भागदौड़ जो नई कॉलेज की करनी चाहिए थी वही करनी पड़ेगी। इस वजह से हमने 11 बच्चों से शुरू किया। मदरसा भी ऐसा ही हुआ था। जब मदरसा 2002 में चालू किया तो सिर्फ 8 बच्चे मिले थे हमें। पूरे टुमकों के हमें छान मारे, सबके पास तश्कील करे, देहातों में गए, यहाँ गए, वहाँ गए, कोई भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ। सिर्फ 8 बच्चे, वो भी 8 बच्चे किसके रखो, मेरा एक बेटा, हमारा आसिफी का एक बेटा, ऐसे ही हमारे जिम्मेदारों के एक बेटे को तश्कील करके ले जाके 8 करे। अल्हम्दुलिल्लाह वो 8 के 8 बच्चे हाफिज भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है। इसमें हमारा फर्जन भी यहाँ पे हाफिज भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, यही मोहतमीम भी है, अक्सर देखा गया है। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो ये पहली जो बैच है हमारी, इंशाल्लाह जैसा कि पहली बैच के 8 भी बच्चे आलिम भी बने, हाफिज भी बने, मुफ्ती भी बने, इसी तरह इंशाल्लाह हमारे जितने बच्चे आएंगे कोशिश हमारी होगी, लेकिन मेहनत बच्चों की होगी, तो फिर ये जितने बच्चे आएंगे नीट क्रॉस कर जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करें, इंशाल्लाह हमारा साथ में साथ दें। जिस तरह का मदरसे का रूल्स और रेगुलेशन है उसके तहत में आप काम करते, पेरेंट्स काम करते चले जाएं, फिर हमारा अल्लाह पर भरोसा रखें, तवक्कुल करें, यहाँ पे दाखिला दिलाएं। इंशाअल्लाह दाखिला मिलने के बाद इंशाअल्लाह मेहनत भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। इंशाअल्लाह उसकी तफसील हमारे सदर साहब बोलेंगे कि कितना डिस्काउंट है, क्या करेंगे, उसे भी
बहरहाल इंशाअल्लाह यहाँ पे PU कॉलेज के अंदर चालू हो जाएगी। अब हमारे यहाँ पे आज जो डे है, जो दिन है, जो 10th स्टैंडर्ड वाले को क्या बोलते हैं, सेंड ऑफ जी जी सेंड ऑफ पार्टी, सेंड ऑफ कर रहे हैं आज। सेंड ऑफ मैं ही कहता हूँ कि मैं आरिफ सर को बोला, हमारे स्टाफ को बोला, सेंड ऑफ कहाँ होगी, 12 के बाद सेंड ऑफ होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो डिग्री भी करेंगे, और जो नीट और CAT के जो एग्ज़ाम लिखते हैं वो तो चल जाएंगे मेडिकल कॉलेज। जो डिग्री करना चाहते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है मेहनत करके डिग्री लाए।